Good morning, all my second year students of MN Homeopathic Medical College. Today, I have decided to take a class on a very important topic, which is a topic from the organon of medicine. The topic is totality of symptom. It is a very well-known topic, and from the very beginning, we are reading this topic. But the reason behind choosing this topic today is that if we can understand the totality of symptom from the very beginning, we can understand the further discussion regarding the case taking and totality of symptom from our homeopathic philosophy. So another thing is that we have to have a recap before starting the homeopathic philosophy, as because we will also read the homeopathic philosophy. Before that, we have to have a recapitulation from the very beginning of the organon of medicine regarding the totality of symptoms. So as usual, let's start, and I will rather speak in both the languages for your better understanding. So both the languages of English and Hindi. If you want a complete English lecture, that is a very that will be more comfortable for me, but still for the convenience we starting in this manner. So this is the organon of medicine, the book which we are going to read. Now the totality of symptom as per the standard of the second BHMS student, we see that we are learning homeopathy from the very beginning. So when we are learning homeopathy from the very beginning, we have to delete something, some previous experience or some previous idea regarding the treatment of a doctor, as because we know that when a doctor comes to our home, we know that we have to tell him about the pulse, we have to tell him about the chest, the tongue, the eyes, etc. And the doctors examine the patient and दो चार चीज़ें पूछते हैं और उसके बाद जो है ना लंबा प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं. And even sometimes with a stethoscope or some hammer giving some injections, etc. तो एक डॉक्टर का जो पिक्चर हमारे मन में बैठा हुआ होता है पहले से, और हम लोग ऐसे करियर जब हम डॉक्टरी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ पिक्चर माइंड में होता है. लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का जो बेसिक आधार है वो है सिम्टम एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम. वहाँ पे कितना इंजेक्शन लगाया, कितना ड्रीप चलाया, इससे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिजीज विद इन द बॉडी एंड हाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिजीज. तो सबसे पहले हमको ये पुराने जो धारणा ही है कि हम लोग एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन हम एक पेशेंट को देखेंगे और उनको जस्ट एक पल्स देखेंगे, आंखें ऐसे ऐसे देखेंगे, जीभ देखेंगे, बस मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि उनको मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया या कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस क्या हुआ है और उसके हिसाब से मेडिसिन दे देंगे. ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता. सबसे पहले होम्योपैथी में क्या होता है ये हमको बताना चाहिए. दैट इज इन आवर होम्योपैथी वी नीड टू डू द इंडिविजुअलाइजेशन, एज बिकॉज in our homeopathy we treat the patient and not the disease. not the disease मतलब हम लोग डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डिजीज का ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो तरीका हम उस पेशेंट के थ्रू जान के, ऐसे चीज को जान के करते हैं जिसमें वो जो डिजीज है कंप्लीटली खत्म हो जाता है. जो चीज हम लोग कहते हैं कि जड़ से खत्म होना, तो आम आदमी जो कहते हैं कि होम्योपैथी में जड़ से खत्म हो जाता है. तो हम लोग को एक पेशेंट में जो देखना है, वो सबसे पहले जो चीज देखना होता है वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. इसके साथ साथ हमको उस पेशेंट का मियाज्म को समझना है, उस डिजीज के रिलेटेड मियाज्म को समझना है, कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना है, उसका सारे हैबिट्स, हैबिटेट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, etc. Everything we have to understand
फ्रॉम द पेशेंट। और उसके बाद हम लोग इसके सारे सिम्टम्स एंड कंडीशंस को एनालाइज करते हुए एक पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंचते हैं। इस मामले में हमको मेट्रिया मेडिका और रेपर्टरी साथ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का भी हेल्प लगता है डायग्नोसिस के लिए, प्रोग्नोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा स्टेज में कौन सा बीमारी है, वेदर दिस डिजीज दिस कंडीशन is curable by our homeopathic medicine or immediately it requires some immediate management, ये भी हमको तय करना है। तो ये सारे चीज को करना है एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। इसलिए ये जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम है, अगर हमारे इसी पॉइंट में गलत हो जाएगा तो हम लोग का पूरा ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा। सो आवर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट is completely different from allopathic treatment and we have to go with the actual steps of the totality of symptom from the very beginning. So at the same time I would like to tell you कि मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैथोलॉजी का क्या जरूरत है या है नहीं। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, वी नीड टू रिकॉर्ड अ पैथोलॉजी, उसके लिए अलग सा क्लास रहेगा। डायग्नोसिस की जरूरत है या नहीं है, डायग्नोसिस की जरूरत है, उसके लिए भी अलग से क्लास बिल्कुल रहेगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द टोटालिटी ऑफ सिम्टम। बहुत शॉर्ट में मैं इसलिए कहूंगा कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ अ सेकंड VHM स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हेन वी रीड दिस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, वी रीड दिस एफोरिज्म, वी हैव टू गो टू एफोरिज्म नंबर 6 वेयर इट इज गिवन रिगार्डिंग द सिम्टम्स। एफोरिज्म नंबर 6 के बारे में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी पूछता हूँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो कि एफोरिज्म नंबर 6 में क्या है, सीधा आंसर ये आता है कि एफोरिज्म नंबर 6 में अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है। हाँ, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है, लेकिन एफोरिज्म नंबर 6 का जो मेन कंटेंट है दैट इज द सिम्टम्स। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एकदम फर्स्ट लाइन में लिखा है, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन which can receive no confirmation from experience, be his power of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health। यहाँ से देखो ये इस एफोरिज्म में कहा है कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर जो अपने जो कल्पनाएं हैं, जो इमेजिनेशंस है, इस पर बिलीव ना करके, वो एक्चुअली प्री जजमेंट ना करके उस पेशेंट को कंप्लीटली देखने की कोशिश करता है, वो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है। और होना है चाहिए, एक फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस जगह से जब शुरू हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह पे हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक पेशेंट में आपको देखना क्या है। देखो, टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। बॉडी और माइंड में जो चेंज हुआ है कहाँ से चेंज हुआ है, दैट इज व्हिच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय मींस ऑफ द सेंसेस। तो जब पेशेंट हेल्दी थे और अब जब पेशेंट अनहेल्दी हुए हैं, ये जो सिचुएशन का डिफरेंस है, इस सिचुएशन में बॉडी में और माइंड में भी क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये चेंजेस हमको नोटिस करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। ये जो आंखें देख रहे हो दैट इज नॉर्मल है, इसमें कोई दैट इज व्हाइट पार्ट व्हाइट है, ब्लैक पार्ट ब्लैक है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ इफ दिस व्हाइट पार्ट बिकम्स टिपिकली रेड, एकदम लाल हो गया, उसको हम नॉर्मल मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले व्हाइट था, दैट वाज नॉर्मल, अभी वो रेड हो गया, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज द डिविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट। पहले जो हेल्दी स्टेट था और अभी जो डिजीज कंडीशन, तो इसी चीज को हम, या डिजीज हो, इंडिस्पोजिशन कुछ भी हो, तो कोई कंडीशन में चेंज हुआ है। तो अगर इस जगह में लाल हो जाता है तो वो जो चेंज है, तो हम लोग उसमें सिम्टम में क्या लिखेंगे, रेडनेस ऑफ द आईज, है ना। तो रेडनेस, दिस इज द चेंज। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिम्टम, दिस इज द सिम्टम। हम क्लासिफिकेशन में बाद में आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बट दिस इज द सिम्टम। ओके, सो दिस इज द चेंजेस। सपोज आई एम सिटिंग क्वाइटली, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, सडनली कोई हेडेक शुरू हो गया, तो इतना सीवियर हेडेक शुरू हो गया। दिस हेडेक इज अ सब्जेक्टिव सिम्टम व्हिच आई कैन ओनली फील। सो दिस
headache, this can be considered as the symptom. This is the symptom. So जो मैंने बाहर से बता कि ये लाल हो गया, अगर ऐसा कुछ है तो that is also a symptom. और कुछ हमारा खुद का फीलिंग है, वो दुनिया में दूसरा कोई फील नहीं कर सकता, दैट इज ये इंटरनल फीलिंग है, दैट इज ऑल्सो सिम्टम. जो बाहर से ऑब्जर्वेबल होता है ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम होता है, और जो हेड के अंदर जो खुद पेशेंट फील करता है, जो बोलता है, दैट इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. व्हाट द पेशेंट फील्स, दैट इज द subjective symptom. These two types of symptoms we can get from each and every patient. One is the subjective symptom, one is the objective symptom. This is written in the symptomatology chapter of Dr. Stuart Close. This is not written in aphorism number 6. हमको ऑर्गेनन में इस जगह पे किसी भी क्षेत्र में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सिम्टम नहीं मिलता है. लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि सिम्टम किस प्रकार के होते हैं, एक तो ऑब्वियसली आंसर देते हैं कोई ना कोई नोटबुक से कि दैट इज अ सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम. लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो हम लोग बता रहे हैं ये कहाँ लिखा है. ये स्टुअर्ट क्लोज का फिलोसफी से लिखा है. ओके, तो ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस हमेशा जरूरी होता है. सो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे एफोरिज्म नंबर 6, जहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो सिम्टम्स जो है, पहले जो कंडीशन था और अभी जो कंडीशन है, इसमें जो डिविएशन है यही सिम्टम है. अच्छा, इसमें कुछ ब्रैकेट में लिखा है मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट सिम्टम्स. बहुत छोटे से अगर इसका आंसर दिया जाए, दैट इज अ मॉर्बिड फेनोमेना. मॉर्बिड मतलब अनहेल्दी कंडीशन, फेनोमेना व्हाट एवर द ऑकरेंस इज गोइंग ऑन, दैट इज द फेनोमेना. तो कोई भी अनहेल्दी कंडीशन और चीजें जो भी हो रहा है, दैट इज द मॉर्बिड फेनोमेना. एक्सीडेंट्स इज समथिंग व्हिच कम सडनली. टू बी वेरी शॉर्ट, कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी टाइप का चेंजेस व्हिच सडनली कम्स, दैट इज एक्सीडेंट. And that is what we call symptoms. Whatever we can see, what we can observe and what the patient can feel, that is a symptom. तो ये सारे चीज जो है हमको देखना होगा एक पेशेंट के अंदर. तो इसमें नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं कि दैट इज टू से ही नोटिसेस ओनली द डिविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल, व्हिच इज, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, remarked by those around him and observed by the physician. तो जो पहले से अभी का जो परिवर्तन है, जो कि पेशेंट खुद जो फील करेगा, पेशेंट के साथ वाले कुछ चीज देखता है जो कभी कभी पेशेंट को खुद मालूम नहीं पड़ता, दैट इज रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, एंड फिजिशियन खुद कुछ देखता है जो ना तो पेशेंट को कुछ समझ में आता है ना तो उनके साथ वाले को, दैट इज ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन. तो ये जो 3 पॉइंट है, इसका कॉम्बिनेशन जो है, ये सारे चीज हमको देखना है. दैट इज व्हाट वी कॉल द सिम्टम. So all these perceptible sign represent the disease in its whole extent. तो ये सारे perceptible sign है जो हम लोग perceive कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. तो this perceptible sign represent the symptom. क्योंकि जो चीज हम लोग perceive नहीं कर पाएंगे, जो चीज हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसका वो फिर उसके ऊपर कैसे काम करेंगे. हम लोग कोई भी चीज को देखते, सुनते, समझते हैं, तो उसी चीज को ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते, कुछ काम करते, कोई एक्शन रिएक्शन देते हैं. और जो भी चीज हमको कुछ समझ में नहीं है, ना पेशेंट को कुछ समझ में आ रहा है, ना पेशेंट को कुछ समझ में आ रहा है, ना साथ वाले को कुछ है, तो उसमें हम क्या करेंगे. जो चीज समझ में नहीं आता उसका कोई सोल्यूशन नहीं. सो इट इज एवरीवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्टम व्हाट वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस. ओके, परसीव. सो ऑल दिस परसेप्टिबल साइन represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. तो together ये जो सारे चीज है, all this condition throughout, तो ये together एक disease portrait या disease picture ये तैयार कर देता है. Now ये जो एफोरिज्म नंबर 6 है, मैं एकदम शुरू में इसलिए एफोरिज्म नंबर 6 को लिया, कारण क्या है कि from this aphorism number 6 we get the basic definition of symptoms. So the symptom is something which is the changes or the or we can say that the deviations which is from the former healthy state to the now diseased individual, which is felt by the patient, remarked by those around him and observed by the physician. This is the symptom. This is the proper definition of the symptom from Hahnemann. So what we say, when we say from Hahnemann, nobody can cut your marks from there. Okay, so start
द सिम्टम, तो सिम्टम का मतलब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि पेशेंट में जो भी सिम्टम है वो क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं, मतलब फिजिशियन जो देखते हैं, पेशेंट जो बोलता है, फील करता है, और साथ वाले जो भी बोलते हैं, इसको एज ए टोटल अगर लिया जाए तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू कैन गेट, दैट इज दीज आर द सिम्टम्स। तो ये जो सिम्टम है इसमें अब कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि आप मान के चलो कि किसी का फीवर है, ओके, नाउ फीवर है, द पेशेंट इज टेलिंग दैट आई एम हैविंग फीवर, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हुआ है। तो बुखार हुआ है 2 दिन हो गया बुखार हुआ है, सपोज ऐसे कुछ बोल रहा है और बोल रहा है कि मुझे बहुत सुस्ती सी लग रही है, मुझे एकदम बिल्कुल कुछ खाने पीने का मन नहीं लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें। तो ओके, दीज आर ऑल द सिम्टम्स। एनोरेक्सिया, डजंट वांट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग। फिर आपने पूछा कि पानी का प्यास कैसा है, तो बोले कि डॉक्टर साहब पानी बहुत पीने को इच्छा हो रहा है, मतलब एक बार में जो है ना 3 गिलास 4 गिलास ठंडा ठंडा पानी पीने का इच्छा हो रहा है, पी भी रहा। This is also a symptom. Now this is not a symptom of it is obviously this is symptom of the fever, but we do not consider sometimes, है ना। तो जनरल मेडिसिन जो है ये एलोपैथिक सिस्टम में है, अगर वो थोड़ा सा पानी पीता है या ज्यादा पानी पीता है उसे डिहाइड्रेशन से रिलेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे में जो ये फीवर है, अब ये देखोगे कि डिहाइड्रेशन नहीं है फिर भी इतना प्यास लगे हुए है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू फीवर। सो दिस आर द सिम्टम्स। Okay, now during the fever the patient is having a very restless sleep, having a vivid dreams during the fever condition. This is also a symptom. During the fever, suppose the patient is having is very much sweating within the covered parts, और जो भी uncovered part है उसमें sweat नहीं है, this is also a symptom to be noted. So we see that when we are treating a patient of fever, we must not treat a patient of fever just a fever है, कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर का सिर्फ चार्ट बना लो और ये तो रेमिटेंट इंटरमिटेंट हो गया, और अगर रेमिटेंट हो गया तो ये टाइफाइड है तो बैक्टीरिया। दिस इज नॉट द प्रोसीड्यूर। यू टेक द फीवर इन अ फुल केस टेकिंग and there where the desire, aversion, intolerance, stool, urine, etc., everything general, the mental condition, the patient is telling that I am very scared that I will die, है ना। तो these are mental symptoms भी लेना पड़ेगा। उसके साथ फीवर का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये जब अपन टोटल हर कोई चीज को लेके एक कंडीशन, एक घटना जो पूरा हम लोग बनाते हैं, तो मतलब लेते हैं, दिस वी गेट द सिम्टम्स। Okay, so these are all the there we can understand that this is the total condition of the man. There from the symptom, अभी मैं कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम का क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कि उस व्यक्ति का जो भी उसको बोलना है, जो भी उसका एबनॉर्मल कंडीशन है, तो एवरीथिंग इज टेलिंग अस अबाउट द सिम्टम। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम।